हर हर महादेव श्रोताओं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम चैप्टर्स की रीडिंग यानी रिटन अपडेट्स अलग से दे दिया करेंगे। तो आप में से जिनको रीडिंग सुनने की इच्छा हो आप सुन सकते हैं, क्योंकि एपिसोड के साथ हम नहीं देते, क्योंकि उससे एपिसोड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है और कभी कभी हमें डिकोडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि रीडिंग्स हम अलग से दे दिया करेंगे। तो बिगिनिंग विद दैट, चैप्टर 10 तक के सारे रीडिंग्स दिए गए थे और मैं इंग्लिश में रीडिंग पढ़ती हूँ और करुणा हिंदी में। तो इंग्लिश के सारे एपिसोड्स जहाँ तक के हमने अब तक के किए हैं वो चैप्टर 11 टू चैप्टर 17 का मैं आज रीडिंग करूँगी। बाकी के एपिसोड्स भी मैं दूंगी किसी और दिन। आज चैप्टर 11 टू चैप्टर 17। तो here it begins. हर हर महादेव। Chapter 11. Remorseful against Lord Shiva, Daksha organizes a Mahayagna with the sole motive of insulting Lord Shiva. At Kailash, Devi Sati gets excited to know about the Mahayagna organized by her father and tells Lord Shiva to take her along there. Lord Shiva says that they didn't receive the invitation, to which Devi Sati is sure that it is on the way, as she is absolutely free of any doubt about her father. Lord Shiva then tells Devi Sati about Prayag incident. Devi Sati, fuming in anger, decides to question and teach her father a lesson. Lord Shiva finally gives in to her request. He sends Nandishwar and Shivganas along with Devi Sati. At Daksha Yagna, sage Dadhichi objects the missing of Lord Shiva's presence, as all other devtas and sages are there. Daksh is adamant on not inviting Lord Shiva. Sage Bhrigu supports Daksh. Sage Dadhichi, along with his pupils, leave the yagna, forecasting about its dangerous consequence aloud. Devi Sati comes and questions her father. Daksh insults Lord Shiva. Sage Bhrigu supports him. Devi Sati sits on self-pyre. Nandi and other Shivganas attack Daksh. Sage Bhrigu, through his yagna fire with the help of his ascetic powers, create Ribhus, who defeat Shivganas. Shivganas come to Kailash and tell everything to Lord Shiva. Angered by hearing everything, Lord Shiva throws his hair lock into ground and Veerbhadra comes out of it. Lord Shiva orders Veerbhadra to teach Daksh a lesson. Shivganas go with Veerbhadra. Veerbhadra creates havoc in Daksh Yagna, but is unable to kill Daksh as he is Lord Brahma's son. Veerbhadra angrily takes out his head and throws into Yagna fire. Nandi kills Sage Bhrigu. They return to Kailash with Devi Sati's burnt body. Everybody at Kailash mourns Devi Sati's death. Lord Shiva, carrying Devi Sati's body, wanders. Har Har Mahadev. Ab Chapter 12. Chapter 12. Story of the formation of 51 Shakti Pithas. Devraj Indra, along with other devtas and Devguru Vrihaspati, go to Lord Brahma. They tell him how Lord Shiva's Tandav carrying Devi Sati's burnt body can cause huge disbalance of the universe. Lord Brahma suggests them to go to Vaikuntha Lok and himself goes with him. Hearing everything, Lord Vishnu gives the suggestion of dividing Devi Sati's body, because as long as Lord Shiva is not separated from her, he would not become calm. Devtas fear it, but Lord Brahma requests Lord Vishnu to go ahead and help the universe regain its composure by dividing Devi Sati's body through his Sudarshan Chakra. Lord Vishnu releases his Sudarshan Chakra after Lord Shiva. Devi Sati's body gets cut into 51 pieces, and each part falling into earth turns into Shakti Peeth. Thus the story of creation of Shakti Peethas is known to all. Lord Shiva regains his composure thereafter and returns to Kailash. Lord Brahma, Lord Vishnu, Devarshi, along with Devtas, come to Kailash and request Lord Shiva to complete the incomplete yagna of Daksh. Lord Shiva forgives Daksh and tells Veerbhadra to bring goat head. Veerni gets terrified and requests Lord Shiva to gift his old face back to Daksh, but Lord Shiva reminds her of Nandishwar's curse to Daksh to become animal-faced.
Daksh becomes Ajamukh. Lord Shiva brings back all the dead sages back to life and tells them to begin the yagna with request from all, receives his yagna share to make the yagna successful. Daksh apologizes to Lord Shiva for his deeds and begins the yagna. All hail Lord Shiva. Har Har Mahadev. Up chapter 13. Seeing Lord Shiva, Devarshi Narad aspires to gain Brahma Gyan and hence performs penance. The sound of his mantra chanting reaches heaven and distracts the apsaras and they stop dancing. Devraj gets worried as to why Devarshi needs to perform penance. He fears losing heaven, so he sends Pavan Dev, Varun Dev and Agni Dev to disturb Devarshi. Pavan Dev, Varun Dev and Agni Dev fail in distracting Devarshi as the ground is blessed by Lord Shiva. Devarshi, after completion of his penance, fills with false pride that he has become extremely knowledgeable as the Devtas were unable to distract him. He goes to Kailash. Lord Shiva understands his arrogance and tells the Shivganas, who are amused by the sudden change in Devarshi's ever-calm attitude. Lord Brahma and Lord Vishnu understands it too. Lord Shiva calls Lord Vishnu and together they discuss how to curb Narad's arrogance. Lord Shiva gives the responsibility to Lord Vishnu. Lord Vishnu creates an illusionary city. Devarshi, while roaming and chanting Aham Brahmasmi, which is I am Brahma, comes there and sees Srimati and gets attracted towards her. He meets her father, King Shilnidhi. Shilnidhi invites Devarshi to his daughter's Swayamvar ceremony. Har Har Mahadev. Up chapter 15. Devarshi goes to Vaikuntha Lok and in his excitement asks for Srimukh from Srihari. Lord Vishnu gives him monkey face. Unaware of it, Devarshi proudly goes to Swayamvar ceremony. He gets taunted and becomes the source of laughter. On seeing his face in water, he fumes with rage. He goes to Vaikuntha Lok. Lord Vishnu goes inside the Kshir Sagar and then again comes out. Devarshi curses him to undergo the pain of separation from his beloved, just like him, and to receive help from monkeys as he made him monkey-faced. Devi Lakshmi questions Narad for his words. Lord Vishnu tells her to calm down as he accepts the curse heartily. Lord Vishnu tells them that Narad's curse will pave the way for Vishnu Leela in Treta Yuga. Devarshi regains his composure and apologizes to Lord Vishnu for cursing him and also understands his mistake of considering himself as Brahma and how to teach him his mistake. Lord Vishnu did everything. Devarshi goes to Kailash too. Shivganas make fun of Devarshi without recognizing him. Devarshi apologizes to Lord Shiva. Lord Shiva tells him that his curse would lead to Lord Vishnu taking birth as Lord Ram and Lord Shiva would be Lord Hanuman and help Lord Ram, always. Lord Shiva grants his old face to Devarshi. All hail Lord Shiva. At Shiva temple, Bhakt Rudra Shekhar tells everyone the story of Mahakaleshwar Jyotirling. Once an Asura, Dushan, performed tough penance to Lord Brahma. Lord Brahma, pleased by him, gave him the boon of not getting killed until he terrorizes Shiva devotees, as giving the boon of immortality is against the laws of nature. Dushan kills his brother Bhushan, who defeated him earlier. Dushan takes hold of his brother's kingdom. At Ujjain, King Vedpriya, along with his 4 sons, always offer prayers to Lord Shiva. One day while passing, Shrikar, a cowherd, along with his mother Gopa, see king worshipping Lord Shiva. Shrikar too wants to worship, but his mother tells him to concentrate on cows as that is his work. Shrikar tells her since God is same for all, so even he has the right to worship. His mother drags him out. Shrikar, while drinking water from river, remembers Vedpriya's worship. Suddenly he saw the same shivling on a huge stone. He starts worshipping the stone. Not seeing Shrikar doing his work, his mother tries to throw the stone and while attempting to lift it up, falls down but cannot move it an inch. Next day, Shrikar lifts the same stone as a flower and puts it in another position so that his mother cannot find him. Har Har Mahadev. Up chapter 16.
Chapter 16, Story of Mahakaleshwar Jyotirling. To save his devotee Shrikar from his mother's anger, Lord Shiva takes the form of Shrikar and does all the work in fields. Shrikar's friends too join him in his worship. On getting complaints from other women, Shrikar's mother Gopa beats Shrikar, but Lord Shiva takes the pain. Shrikar's father tells Gopa how Shrikar did all the work. Gopa apologizes to Shrikar. Dushan's men, on seeing Vedpriya and his sons worshipping Lord Shiva, vandalizes the spot. They come to Shrikar too, but fire out of Shivling stone catches them. On hearing about the incident, Vedpriya along with his sons come to Shrikar. Together they all worship Lord Shiva. Hearing everything from his men, Dushan comes to kill Shrikar, but gets killed by Lord Shiva's fury. Third eye. Lord Shiva applies his ashes all over his body. Vedpriya and Shrikar gets overjoyed. Gopa apologizes to Lord Shiva for disturbing Shrikar in his worship. Lord Shiva tells Shrikar that in Dwapar Yuga, Lord Vishnu will be raised by his grand successor Nand and his wife Yashoda. On everyone's request, Lord Shiva enters into the same worshipped linga, and thus the creation of Mahakaleshwar Jyotirling gets completed. Now the story of Raja Bali begins. Demon King Bali was a famous king whose chivalry and bravery was appreciated all over. King Bali in his royal assembly found cut-head Rahu entering. Headless Rahu entering. He welcomed him, but Rahu was upset that King Bali did not take any initiative in avenging his insult by Lord Vishnu amongst Devtas. Guru Shukracharya too kept insisting to wage war against Devtas. King Bali finally gives in and announces war against Devtas. Devtas gets defeated by demons. Devraj, along with other Devtas, flee from battlefield and reach Brahmalok. They cry for help from Lord Brahma. Lord Brahma tells them that only Lord Shiva can help them. Har Har Mahadev. Up chapter 17. Chapter 17. Prahlad gets grand welcome at heaven by Bali. Bali offers him Indrasan, but Prahlad refuses, citing the reason of his disinterest in worldly riches after becoming sannyasi. Prahlad advises Bali to rule with righteousness and never make righteous people suffer. Lord Brahma, along with other Devtas, goes to Kailash. Lord Shiva advises Devtas to perform Brahma Yagna and acquire power to defeat demons. Rahu comes to heaven and tries to instigate Bali of Prahlad, but Bali does not respond to Rahu's ever evil and disrespectful thoughts. Rahu warns him about Indra and his kapat. Devraj, along with other Devtas, perform Brahma Yagna and are successful in acquiring power. Devraj, along with other Devtas, wage war against demons. Devraj kills King Bali with his weapon Vajra. After Bali's demise, demons flee from heaven. Devtas get heaven back to their power. Devraj sits on his throne and begin his work. हर हर महादेव. तो यही खत्म होते हैं अध्याय 11 से अध्याय 17. आज काली पूजा होने के कारण आपको ढोल की आवाज़ें सुनाई दी होंगी, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, पर क्योंकि पूजा है तो हर हर महादेव. तो ये थे चैप्टर 11 टू चैप्टर 17. अब बाकी के चैप्टर्स भी मैं पढ़ूंगी किसी और दिन. आप सबको काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं. हर हर महादेव. जय मां आदिशक्ति. हर हर महादेव. 13वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है और ये है देवर्षि नारद का मोह भंग के बारे में. आइए चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं. उधर ऋषि नारद ध्यान मग्न होकर ओम उच्चारित करते हुए तप में लीन रहते हैं. उधर माता लक्ष्मी भी नारद मुनि को याद करते हुए कहती हैं कि नारायण नारायण सुने एक समय बीत गया. इंद्रलोक में भी ओम की गूंज होती है और इंद्रदेव यह सोचकर घबरा जाते हैं कि उस तप का कारण क्या है. इंद्रदेव को देवगुरु की कृपा से यह पता चल पाता है
कि वे तप करने वाले नारद मुनि हैं। इंद्रदेव की आज्ञा पाकर वरुण देव और अग्निदेव नारद मुनि की तपस्या भंग करने का अथक प्रयास करते हैं, किंतु यह प्रयत्न निष्फल जाता है। समय बीतता है और नारद ऋषि अनेकों रुकावटों के बावजूद अपने तप को पूर्ण करते हैं। आकाशवाणी होती है कि किस प्रकार वरुण देव और अग्निदेव के प्रयत्न पर भी उनका तप वो नहीं तोड़ पाए। यह सोचकर नारद ऋषि सिद्ध हो गए हैं। नारद मुनि में अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। उधर इंद्रदेव को यह सूचित किया जाता है कि वरुण देव अग्निदेव नारद ऋषि के तप को भंग करने में निष्फल रहे हैं। नारद ऋषि कैलाश को गमन होते हैं और महादेव को यह सूचित करते हैं कि उनकी साधना सफल हो गई है और वे सिद्ध हो गए हैं। महादेव यह भी समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं ऋषि नारद में अहंकार का भाव आ चुका है। इसके उपरांत महादेव यह भी कहते हैं कि अपनी सिद्धियों का प्रचार स्वयं करना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग इस वाक्य का गलत भाव निकाल सकते हैं और उनकी सिद्धियां छिन्न भी हो सकती हैं। इसके उपरांत नारद ऋषि ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव भी उन्हें यही सुझाव देते हैं कि उन्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। पुनः नारद ऋषि विष्णु लोक जाकर विष्णु भगवान को यह सूचित करते हैं कि किस तरह वे साधना में लीन थे। विष्णुदेव को भी यह ज्ञात होता है कि नारद मुनि को अभिमान हो गया है। भगवान विष्णु नारद ऋषि को लेकर चिंतित होते हैं और कैलाश को गमन होते हैं, जहां भगवान शिव उन्हें यह कहते हैं कि नारद के अभिमान से मुक्त उन्हीं को कराना होगा। जिसके उपरांत भगवान विष्णु एक माया की नगरी बनाते हैं और अपनी माया रचना आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद के अंदर भी माया का प्रकोप होता है और वे अपने ब्रह्मचर्य को भूलकर प्रेम में पड़ जाते हैं। जहां उस मायावी नगरी की राजकुमारी से उन्हें प्रेम हो जाता है और नारद ऋषि उनसे विवाह करने को आसक्त हो जाते हैं। राजकुमारी का हाथ देखते हुए वे बताते हैं कि राजकुमारी को विष्णु भगवान के समान एक सुंदर वर मिलेगा। उधर देवर्षि नारद विष्णु लोक को गमन होते हैं और माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं। नारद ऋषि भगवान विष्णु को अपने मन की संपूर्ण बात बताते हैं, जिस पर भगवान विष्णु उन्हें याद दिलाते हैं कि वे एक बाल ब्रह्मचर्य हैं। अर्थात नारद ऋषि यह वर मांगते हैं कि उनका रूप हरि के समान हो जाए, जिस पर भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे नारद ऋषि का रूप बदल देंगे। उधर कैलाश में महादेव अपने गण श्रृंगी भिंगी को भी सावधान करते हैं कि इस बार उन्हें नारद ऋषि का मोह भंग करने में उनकी सहायता लगेगी। वे बताते हैं कि नारद ऋषि को उन्हें ही सत्य का ज्ञान करवाना है। इसके साथ ही 13वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसके साथ ही हम आ गए हैं 14वां अध्याय में, जो कि नारद ऋषि के मोह भंग की कथा बताती है। नारद ऋषि अपने हरि रूप से अपरिचित विष्णु भगवान की माया नगरी में स्वयंवर की भागीदारी के लिए पहुंचते हैं। समस्त सभा उनका व्यंग्य करती दिखती है, जिससे वे अपरिचित थे। ज्यों राजकुमारी वरमाला लिए स्वयंवर के लिए आती हैं और नारद ऋषि के समीप जाती हैं, कुछ देर नारद जी को निहारने और समस्त राजकुमारों को देखने के बाद वे भगवान विष्णु के गले में जाकर वरमाला डाल देती हैं। नारद ऋषि अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी ने उनके रूप की अपेक्षा की है अथवा उन्हें पश्चाताप करना होगा। पुनः श्रृंगी भिंगी, जो कि महादेव के द्वारा भेजे हुए गण हैं, उन्हें सत्य से अवगत करवाते हैं और उन्हें उनके वानर रूप से भी अवगत करवाते हैं, जिस पर नारद ऋषि क्रोधवश श्रृंगी और भिंगी को श्राप देते हैं कि उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी वे राक्षस समान होंगे। कुपित देवर्षि नारद अहंकार के वश में नारायण लोक जाकर भगवान विष्णु को यह श्राप देते हैं कि वे भी अपनी प्रेम के लिए वन वन भटकेंगे। विष्णुदेव नारद ऋषि का श्राप सहर्ष स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि यह सब महादेव की इच्छा से हुआ है और ब्रह्मा विष्णु महेश को समय समय पर यह लीलाएं करनी पड़ती हैं। नारद ऋषि का भी मोह भंग हो जाता है और वे नारायण से माफ़ी मांगते हैं और अपनी भूल को सुधारने का उपाय भी पूछते हैं। इसके उपरांत नारद ऋषि कैलाश जाते हैं
और पूरे लीला का प्रसंग महादेव स्वयं नारद ऋषि को समझाते हैं कि किस प्रकार विष्णु भगवान श्री राम बनेंगे, माता लक्ष्मी सीता का रूप लेंगी और श्रृंगी बिंगी कुंभकर्ण एवं रावण का रूप लेंगे। सब कुछ ज्ञात हो जाने के बाद और महादेव से क्षमा मांगने के उपरांत नारद ऋषि अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं। पृथ्वी पर शिव भगवान की मंदिर में रुद्रगिरी जी से वहां आए श्रद्धालुगण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने का अनुरोध करते हैं। वे बताते हैं कि उज्जैनी नगरी में 2 महान शिव भक्त रहते थे, जिनकी संकट से रक्षा करने के लिए उन्होंने यह महाकालेश्वर रूप रचा। अतः वे बताते हैं कि किस प्रकार दूषण ने ब्रह्मदेव को खुश करके उनसे वरदान लेकर उसका दुरुपयोग करने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित किया। उसने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि आज के बाद अगर उसे छोड़कर किसी और भगवान की पूजा की गई तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। उधर महादेव के कुछ ऋषि भक्त उनकी पूजा में लीन रहते हैं। उनमें से एक राजा वेदप्रिय भी होते हैं। उन्हें भक्ति में लीन देखकर श्रीकर के मन में भी महादेव की भक्ति की भावना उमड़ती है। बालक श्रीकर अपने माता के मना करने के उपरांत भी महादेव की भक्ति में लीन होकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है कि तभी उसका ध्यान एक शिला की ओर जाता है, जिसमें उसे साक्षात शिवलिंग की दर्शन होती है और वह महादेव के जप में लीन हो जाता है। श्रीकर की माता जंगल से समय पर न लौटने के कारण अपने पुत्र को लेकर चिंतित होती है और जंगल की ओर जाकर अपने पुत्र का ध्यान तोड़ने की कोशिश करती हैं और उसे क्रोधपूर्वक घर ले जाती हैं। किंतु श्रीकर अगले दिन भी सुबह महादेव की भक्ति करने को निकल पड़ता है। महादेव के नदी के जल से अभिषेक करने के उपरांत श्रीकर माता के भय से अपने शिवलिंग को लेकर जंगल की ओर जाता है, जहां और भी बच्चे उसके साथ महादेव की साधना में ध्यान लगाते हैं। हर हर महादेव। इसके साथ ही 14वां अध्याय समाप्त होता है। आइए चलिए 15वां अध्याय हम शुरू करते हैं। हर हर महादेव। और ये कथा है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। उधर गोपा जब घर पहुंचती है तब उसका पति उसे बताता है कि किस प्रकार श्रीकर अपने सारे काम करने के बाद गायों को चराने के लिए वन गया है। गोपा के मन में श्रीकर को लेकर ममता उमड़ पड़ती है। वह वन में जाकर स्वयं अपने पुत्र को गाय चराते देखकर अत्यंत सुखी होती हैं। उधर नारद ऋषि महादेव की खोज में भटकते रहते हैं और पुनः उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि श्रीकर का रूप लेकर महादेव ही अपने भक्त की सहायता कर रहे हैं और यह लीला रच रहे हैं। शिव भक्त वेदप्रिय और श्रीकर को महादेव की पूजा करते देख राक्षस दूषण के सैनिक यज्ञ को ध्वंस करना चाहते हैं, परंतु उन्हें असफल ही लौटना पड़ता है। महादेव के चमत्कार के आगे उन राक्षसों की एक न चलती है। दूषण स्वयं ही ऋषियों और श्रीकर का वध करने को आता है। महादेव की भक्ति में लीन इन भक्तों का सहायता करने के लिए महादेव स्वयं प्रकट होते हैं और क्रोधित होकर दूषण को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर देते हैं। जब दूषण के शरीर का बस राख रह जाता है तो महादेव उस चिता भस्म को लगाकर महाकाल बन जाते हैं। वे पुनः अपने दोनों भक्तों को श्रीकर एवं वेदप्रिय को अमर कीर्ति का वरदान भी देते हैं और सदा सदा के लिए उज्जैनी की पावन नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ज्योति के रूप में समाहित हो जाते हैं। उधर राजा बलि भी महादेव के परम भक्त थे। समय मोड़ लेती है। राहु अपना कटा हुआ शीश के रूप में बलि सभा में आता है और राजा बलि को स्वर्ग लोक में आक्रमण करने को उत्तेजित करता है। बलि विवश होकर स्वर्ग पर आक्रमण की आज्ञा दे देते हैं। उधर देवतागण स्वर्ग पुनः हार जाते हैं और उन्हें स्वर्ग से पलायन करना पड़ता है। वे समस्त देवतागण देवगुरु बृहस्पति के शरण में जाते हैं। वे समस्त देवगण समेत देवगुरु सहित ब्रह्मलोक को जाते हैं और ब्रह्मदेव को अपनी पराजय की बात बताते हैं। ब्रह्मदेव भी इस पूरे प्रसंग को सुनने के उपरांत इंद्रदेव के साथ समस्त देवगण को महादेव के पास कैलाश लेकर जाते हैं और यह भी कहते हैं कि अब महादेव ही उनकी कुछ मदद कर सकते हैं और उन्हें सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही 15वां अध्याय समाप्त होता है। आइए चलिए इसके साथ ही 16वां अध्याय आरंभ करते हैं
और ये कथा है बलि यज्ञ के बारे में। सो हर हर महादेव। उधर राजा बलि इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, जहाँ पर उनके पितामह प्रहलाद भी आते हैं और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य भी। राजा बलि के कहने पर भी पितामह प्रहलाद राज सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और राजा बलि को स्वर्ग का राजा घोषित करते हैं एवं उनका राज्याभिषेक भी करते हैं। पितामह प्रहलाद समस्त दैत्यगण को अधर्म और अत्याचार का मार्ग छोड़ देने की बात भी कहते हैं। वे समस्त सभा को संबोधित करते हैं और उसके उपरांत पितामह प्रहलाद वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद राहु का आगमन होता है। वे पुनः चेतावनी देते हैं राजा बलि को कि वे सब भगवान विष्णु से बचकर रहें। सावधान करने के उपरांत राहु चला जाता है और उधर देवतागण महादेव के शरण में जाते हैं और उन्हें समस्त प्रसंग बताते हैं और उन्हें संकट से उबारने की बात भी कहते हैं। महादेव कहते हैं कि दैत्य एवं देव दोनों ही उन्हें प्रिय हैं और महादेव यह सुझाव देते हैं कि समस्त देवताओं को धर्म यज्ञ करना चाहिए। राहु पुनः दैत्यों को ललकारता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। उधर इंद्रदेव यज्ञ करके शक्तियां और बल अर्जित करते हैं और पुनः स्वर्ग को जीत लेते हैं और अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। युद्ध के दौरान राजा बलि वीर गति को प्राप्त होते हैं, परंतु गुरु शुक्लाचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। समस्त देवतागण पुनः कैलाश जाकर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। नारद ऋषि उसी वक्त आकर यह सूचना देते हैं कि बलि एवं दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने नर्मदा की तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है और अगर यह संपूर्ण हो गया तो दैत्यों का आधिपत्य तीनों लोकों पर हो जाएगा। समस्त देवतागण पुनः शिव शंकर भगवान से इस समस्या का निवारण मांगते हैं। महादेव की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु यह दायित्व लेते हैं जिससे दैत्य और देवताओं का कल्याण हो। उधर बलि यज्ञ आरंभ होता है और चिंतित इंद्रदेव अपनी माता अदिति के पास जाते हैं और अपनी समस्या का विवरण देते हैं। माता अदिति जो देवताओं की माता हैं, वे भगवान विष्णु का कठिन तप आरंभ करती हैं और यह सुझाव उन्हें ऋषि कश्यप एवं ब्रह्मदेव द्वारा मिलता है। ब्रह्मदेव अदिति को कठिन तप करने का सुझाव देते हैं। इसी के साथ 16वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 17वां अध्याय हम शुरू करते हैं और ये कथा है भगवान विष्णु के वामन अवतार की। माता अदिति ब्रह्मदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपना तप प्रारंभ करती हैं। उधर राजा बलि दैत्य गुरु की मदद से यज्ञ संपूर्ण करने के समीप पहुंच जाते हैं। माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और माता अदिति से पूछते हैं कि उन्हें वरदान स्वरूप क्या चाहिए। वे माता अदिति को आश्वस्त करते हैं कि दैत्यों का आधिपत्य तीनों लोकों में कभी नहीं हो सकता। माता अदिति राजा बलि को रोकने के लिए प्रार्थना करती हैं कि भगवान विष्णु उनके इंद्रदेव सहित देवों की रक्षा करें। विष्णु भगवान माता अदिति को यह वर देते हैं कि वे अवतार लेंगे और उनके पुत्र के रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा करेंगे। तप के सफल होने की सूचना माता अदिति ऋषि कश्यप को भी देती हैं। इसके उपरांत देवर्षि नारद का कैलाश में आगमन होता है। उनके मन में भांति भांति प्रश्न उठ रहे होते हैं। वे महादेव से पूछते हैं कि भगवान विष्णु ने माता अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान क्यों दिया। कैलाशपति महादेव ऋषि नारद के संशयों को दूर करते हुए उन्हें बताते हैं कि देवताओं की रक्षा हेतु उन्होंने ही भगवान विष्णु को देवताओं की रक्षा का दायित्व सौंपा था और यह उसी दायित्व का अंश है। भगवान विष्णु की दिव्य ज्योति माता अदिति में समाहित होती है और उधर नारद जी ब्रह्मलोक को जाते हैं और उनसे अपने पुनः कुछ प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं। उनके मन में यह संशय होता है कि भगवान विष्णु अवतार लेने के बाद राजा बलि के 100वें यज्ञ को कैसे रोकेंगे, जिस पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि भगवान विष्णु यज्ञ को कदापि नहीं रोकेंगे, पर यह भी कहते हैं कि यह सब महादेव की लीला है और भगवान विष्णु जल्द ही
माता अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। उधर पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु अवतार ले लेते हैं। ब्रह्मदेव का आगमन होता है। वे विष्णु भगवान के अवतार वामन देव को प्रणाम करते हैं। इसके उपरांत वहां बृहस्पति गुरु भी आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। पुनः देवगुरु बृहस्पति वामन देव की यज्ञोपवित्र का कार्य संपन्न करते हैं। माता पृथ्वी भी वामन देव के लिए मृग चर्म लेकर आती हैं और उसके उपरांत समस्त देवतागण एक एक कर वामन देव के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उन्हें तरह तरह के भेंट एवं उपहार और अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। वामन देव इन सब के उपरांत राजा बलि के यज्ञ स्थल पर जाते हैं और वहां जाकर राजा बलि से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। राजा बलि प्रतिहारी के हाथों उन्हें दान और तरह तरह के पदार्थ एवं आभूषण देते हैं, परंतु वामन देव इन सब उपहारों की अपेक्षा कर देते हैं। अंततः राजा बलि को यज्ञ के बीच से उठकर आना पड़ता है। राजा बलि वामन देव का यथोचित आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि उनके लिए वामन देव की क्या आज्ञा है। वामन देव कहते हैं उन्हें तप के लिए 3 डग धरती चाहिए। राजा बलि इस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप अपने नन्हे कदमों से 3 डग धरती लेकर क्या करेंगे, जिस पर भगवान विष्णु उन्हें सीख देते हैं कि संतोष सबसे महत्वपूर्ण है। इच्छाएं पतन की ओर ले जाती हैं और उसका कोई अंत नहीं होता। उधर शुक्लाचार्य का क्रोध बढ़ता है कि राजा बलि यज्ञ में आ क्यों नहीं रहे। उधर राजा बलि संकल्प लेने को तैयार ही होते हैं 3 डग धरती देने के लिए कि शुक्लाचार्य उन्हें रोक लेते हैं। इसके साथ ही 17वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। हमने सरल अनुवाद की है हिंदी और इंग्लिश में, और अगर हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो हम क्षमा मांगते हैं। जल्दी ही मिलेंगे इस कथा के अगले भाग में।